صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ 1800 ارب سے زیادہ کے بقایا جات وفاق کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ خیبر پختونخوا نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز، مختلف شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی کر دی۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 17 خرب 54 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 416 ارب سے زائد مختص، تعلیم کے لیے 362 ارب سے زائد، صحت کے لیے 232 ارب مختص کر دیے گئے۔ بجٹ میں گندم کی خریداری کے لیے 26 ارب مختص، توانائی کے لیے 31.5 ارب مختص، بجلی کے لیے خیبر پختونخوا ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کی جائے گی۔ کم از کم ماہانہ اجرت 36,000 کرنے کی سفارش۔ کمرشل پراپرٹی، کارخانوں، جائیداد کی منتقلی پر ٹیکسوں میں کمی۔ IMF کے مطلوبہ ٹیکس نظر انداز کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم نے کہا وفاق کے ذمے 1800 ارب سے زائد رقم واجب الادا ہے، وفاق فراہم نہیں کر رہا۔ نہیں بلا رہے SIFC میں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس پہ ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں۔ ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے 15 دن کی، 15 دن گزریں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ بٹن کس کا ہے، بجلی کس کی ہے، صوبہ کس کا ہے۔ وفاقی حکومت کو ہماری نہیں تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں۔ SIFC اجلاس میں نہیں بلایا گیا، اسی طرح ملک چلانا ہے تو پھر ٹھیک، صوبے کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وفاق کو 15 دن کا وقت دیا ہے، وقت پورا ہونے پر بتاؤں گا بجلی کا بٹن کس کے پاس ہے اور صوبائی مختاری کسے کہتے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، آپ وفاق پر کب چڑھائی کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے کہا فی الحال عوام سے کہتا ہوں صبح شام نماز پڑھ کر دعائیں دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر KP کا رابطہ، ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے کل SIFC اجلاس میں وزیر اعلیٰ KP کو مدعو کر لیا، دعوت چیف سیکرٹری KP کے ذریعے دی گئی۔ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا GSP پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی، آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہے۔ SIFC پاکستان کی لائف لائن ہے۔ آپ نے ایک شخصیت کو اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کیا تھا، ہماری ریڈ لائن SIFC ہے جن کو آپ کراس کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ IMF کو خط لکھنے والے اب SIFC پر حملہ آور ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا SIFC پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ آپ SIFC وزیر اعظم اور آرمی چیف پر حملہ کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے اور IMF سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک کی پریس کانفرنس، کہا وفاقی بجٹ کے اعداد و شمار دیکھتے ہوئے صوبے بجٹ لاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فرضی نمبرز پر بجٹ پیش کیا۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے کہا بجٹ پر کسی سے مقابلہ نہیں، وفاقی حکومت IMF کے ساتھ مصروف تھی، بجٹ کی تاریخ نہ دے سکی۔ ممکنہ طور پر وفاق 6 جون کو بجٹ پیش کرتا تو ہم کب کرتے، پھر عید آنے والی ہے۔ وفاق سے خیبر پختونخوا کو اپنے بقایا جات نہیں مل رہے، قبائلی اور بندوبستی علاقوں میں وفاق بھی ٹیکس نہ لگائے۔ بعد میں PTI کے مرکزی دفتر پر کریک ڈاؤن، انسداد تجاوزات کی ٹیم نے عمارت کا ایک حصہ گرا کر دفتر سیل کر دیا۔ پولیس نے مزاحمت پر رہنما عامر مغل کو گرفتار کر لیا۔ FIR کے مطابق عامر مغل نے CDA کے آپریشن کے دوران آہنی راڈ اٹھایا ہوا تھا، ہوائی فائرنگ کی، پولیس اور CDA عملے پر حملہ کیا گیا۔ عامر مغل کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ دستاویز کے مطابق اسلام آباد میں پلاٹ 7 جولائی 2020 کو PTI کے نام ٹرانسفر ہوا۔ سابق سیکرٹری جنرل PTI نے قانونی کارروائی مکمل کی۔ یہ جو سینٹرل سیکریٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ جو اٹیک کیا گیا CDA کی طرف سے، وہ بغیر نوٹس کے تھا۔ ہم لوگ قانونی اپنی چارہ جوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف
आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। पीटीआई का सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पिटीशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले, गुज़श्ता रात सब ने देखा फरसूदा निज़ाम के बुलडोज़र आए। हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा, पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। पीटीआई के दफ्तर में तजावुजात थी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, चेयरमैन सीडीए से बात की कि ऐसी नौबत क्यों आई। उन्होंने जवाब दिया, 4 साल से नोटिस दिए जा रहे हैं। 10 मई को फाइनल नोटिस भेजा गया। उन्होंने 2 फ्लोर बगैर नक्शे कायम किए, पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड बनाया था। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने हुकूमती दावे की तरदीद कर दी। कहा, मरकजी सेक्रेटरीट से मुतालिक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। हमारी हुकूमत में हमें नोटिस मिले होते तो फौरी इस पर एक्शन लेते। मरकजी सेक्रेटरीट कानूनी तौर पर बनाया गया है, सारे सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान शामिल। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। आजम खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन आफरीदी, अब्बास आफरीदी और नसीम शाह शामिल। पीसीबी का कहना है टीम के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं रखे गए। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, नेट में बॉलिंग कर रहे हैं। ऐलान करदा स्क्वाड की खबर ARY न्यूज़ पहले ही दे चुका था। 20 टीमों में पाकिस्तान सबसे आखिर में अनाउंस होने वाली टीम है। इसराइल को कत्लेआम की मजीद मोहलत मिल गई। आलमी अदालत इंसाफ ने मुजरिम ठहराने के बजाय रफा पर हमले फौरी बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। जनूबी अफ्रीका की नई दरखास्त पर आलमी अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गजा में नस्लकुशी की तहकीकात करे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट 1 माह में पेश की जाए। इसराइल को जनवरी और मार्च के अदालती फैसलों पर अमल दरामद का हुक्म। आलमी अदालत ने हमले रोकने और तहकीकात का फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत के सदर ने सहूनी रियासत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, इसराइल ने 10 जनवरी के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया और हमले जारी रखे। गजा के बाद रफा में भी इंसानी सूरत हाल तबाहकुन है। गजा के बासियों पर जमीन तंग कर दी गई है। खाने पीने की अशिया को रोका गया। लोग भूख से मर रहे हैं। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी चल बसे। मीरपुर माथेरो में नामालूम अफराद ने नसरुल्लाह को गोलियां मारी थी। नसरुल्लाह को एयर एम्बुलेंस के जरिए 2 रोज़ कबल रहीम यार खान से कराची मुंतकिल किया गया। मैयत की आबाई गांव मुंतकली के दौरान छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ियों ने फूल निछावर किए। नसरुल्लाह गडानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नसरुल्लाह गडानी समाजी मसाइल उठाने और ताकतवर लोगों से सख्त सवालात करने के लिए मशहूर थे। सहाफ़ियों का सिंध असम्बली में भी एहतजाज। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर कमांडर ISI, MI और डायरेक्टर IB को 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी का तफसीली फैसला जारी। लिखा, मामला संजीदा है। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर समाअत मुलतवी नहीं कर सकते। वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। फैसले में है कि सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया, अटॉर्नी जनरल का बयान नशर हुआ तो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। पैमरा के नाजायज दबाव से सहाफ़ी मुश्किल हालात का शिकार हो गए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस पर कहा, अदालत इस अहम मुकदमे की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत देती है।
लापता अफराद के तमाम मुकदमे बराह रास्त नशर किए जाएं। अदालत ने हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। 8 सफ़ात का हुक्मनामा उर्दू में तहरीर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी। समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अहम नोयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। ARY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। किसी इदारे, हुकूमत या बाढ़ से लड़ाई नहीं चाहते, ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। जो कानून कहेगा वही करेंगे, कानून से बाहर कोई चीज नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब। कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के वकला का शुक्रगुजार हूँ, हड़ताल खर्चल खत्म कराने में हमारी मदद की। जजेस को चाहिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल अबूर हासिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI की गुफ्तगू पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जब दरख्वास्त दायर होगी तब उस पर फैसला होगा। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। बरी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। कोटली और गिरदोनवा में तेज आंधी के साथ बारिश। मौसम की सख्ती कम हो गई। टोबा टेक्सिंग में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना, शिकारपुर समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ का कहना है, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और लागत कम करने की ज़रूरत है। टैक्स वसूली मुनसिफाना होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। नेथन पोर्टर का कहना है, पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 76,000 अबूर कर गया। 868 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 75,983 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख कहते हैं, यूरोपीय कंपनी पाकिस्तान की बंदरगाहों में $2 अरब की सरमायाकारी का जायजा ले रही है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग टर्मिनल कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। SIFC ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में अहम किरदार अदा किया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹10.69 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ ₹44.69 फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। शदीद गर्मी के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग।
शहरी सरापा एहतजाज। स्ट्रीट क्राइम पर काफी हद तक काबू पा लिया, मजीद कम करने के लिए कोशिशां हैं। आदि मुजरिमों को मॉनिटर करने का सिस्टम बना रहे हैं, प्रोसिक्यूशन मजबूत कर रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे पर तेजी से काम हो रहा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की FPCCI के वफ्द से गुफ्तगू, कहा कराची को रिंग रोड देने का मंसूबा है, मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से भी जोड़ेंगे। CTD अफसर अगवा बराए तावान के बाद स्मगलिंग में भी मुलव्विस निकले। सब इंस्पेक्टर अनार खान और फयाज शाह के खिलाफ छालिया स्मगलिंग में मुलव्विस होने का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक इत्तला मिलने पर पुलिस मोहम्मदपुर सोसाइटी पहुंची। मुसल्लह शख्स ने कहा हम CTD से हैं, कांस्टेबल को थप्पड़ मारा, कोच के ड्राइवर को फरार करवाया। जिला अस्पताल कराची में पेट सिटी स्कैन मशीन अपग्रेडेशन के सबब गैर फाल। कैंसर मरीजों को तारीख देने के बावजूद पेट स्कैन नहीं किया जा रहा, मरीज परेशान। इंतजामिया का कहना है जिला अस्पताल में मरीज ज्यादा होते हैं, इस वजह से मशीन पर लोड बढ़ जाता है। मशीन में यौमिया 5 से 6 मरीजों की स्कैन की सलाहियत है। मरीज ज्यादा होने से रोजाना 20 स्कैन किए जाते हैं। कराची में आटा सस्ता लेकिन बेकरी आइटम सस्ते न हुए। कई जगहों पर डबल रोटी और पापे सस्ते करने के बजाय पैसे बढ़ा दिए गए। आटे की कीमत नीचे आने पर सिर्फ नान और चपाती की कीमत में कुछ कमी आई। शहरियों ने मुतालबा किया इंतजामिया बेकरी आइटम की कीमतें भी कम कराए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर पर गोली लगने का कोई निशान नहीं, बुलंद चोटी से टकराने के बाद आग लगी। हेलीकॉप्टर मुकर्ररा रास्ते से नहीं हटा। पायलट ने हादसे से 1.5 मिनट पहले 2 दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता किया। फ्लाइट के अमले के साथ कंट्रोल टावर की बातचीत में कोई मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई। 19 मई को ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था। इसराइली फोर्सेस की शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में वेयर हाउस पर बमबारी में 12 फलस्तीनी शहीद हुए। रफा के जुनूब मशरकी इलाकों में इसराइली फोर्सेस टैंक लेकर घुस गईं। अल-अक्सा अस्पताल में बिजली बंद होने से मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मेडिकल डायरेक्टर का कहना है जनरेटर के लिए भी ईंधन खत्म हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा फिर सरापा एहतजाज, आजाद फलस्तीन के नारों की गूंज। फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से 13 तलबा को असनाद का इजरा 1 साल के लिए मौखर करने के खिलाफ सैकड़ों ग्रेजुएट्स का तकसीम असनाद की तकरीब से वॉकआउट। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत खत्म करने का मुतालबा। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 कल बर्मिंघम में खेला जाएगा। जारे मिजाज कौमी बल्लेबाज फखर जमान कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। वर्ल्ड कप के हर मैच में 200 से ज्यादा रन बनाने का प्लान है। मेगा इवेंट में अपने पुराने अंदाज से खेलूंगा। आजम खान को सिफारिशी कहना ज्यादती है। कौमी स्क्वाड की एडवेस्टन ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के साथ कैचिंग पर भी खास तवज्जो दी गई। स्क्वाड ने साइम अयूब की सालगिरह भी मनाई। नौजवान ओपनर ने केक काटा, खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। ICC ने शाहिद आफरीदी को T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। युवराज सिंह, क्रिस गेल और यूसेन बोल्ट भी फेरिस्त में शामिल। शाहिद आफरीदी का कहना है T20 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब है। पहले T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, फिर 2009 में ट्रॉफी जीती। ये मेरे करियर के काबिल जिक्र लम्हात हैं। 9 जून को पाक भारत मैच देखने के लिए पुरजोश हूँ। शानदार आतिशबाजी, लाइट प्रोजेक्शन के दिल फरेब नजारे। सिडनी में लाइट फेस्टिवल ने रात में रंग भर दिए।
मशहूर सयाहती मकाम ओपरा हाउस और तारीखी इमारतों पर हैरत अंगेज मनाजिर। हार्बर ब्रिज भी झिलमिला उठा। रोशनियों के मेले से सयाह खूब महसूस हुए।